Hello everyone, welcome to our show Thoughts on Education, an initiative by College Dunia. So today we have Dr. Anurag Jain sir with us. He is the director of Radharaman Engineering College, Bhopal. A hearty welcome to you sir on behalf of College Dunia and thank you for giving your precious time to us sir. Shall we start the interview? Yeah. Okay sir. My first question to you is, you have held key positions at education institutes throughout your professional career. What are the key factors that keep you connected with the education sector? The main key factors are continuous learning and sharing knowledge and transmitting knowledge to the student directly involved to teacher for the nation building. आई थिंक मैं सोचता हूँ कि अगर हम जब तक हमारी कंटिन्यूस लर्निंग और हम नॉलेज शेयरिंग की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि एज अ टीचर हमको अपना करियर में हमेशा अपग्रेड रहना पड़ेगा। अगर हम अपने आप को अपग्रेड नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं हम अपने लैक करते जाएंगे, क्योंकि नॉलेज आज की दुनिया में जो नॉलेज है उसका जो ग्रोथ है वो मल्टीपल ग्रोथ है। तो हमें अपने आप को अपडेट भी करना पड़ेगा और दूसरी बात ये कि हम अपने नॉलेज को अपने छात्रों तक कैसे पहुंचाएं। इसके लिए नॉलेज शेयरिंग की जो बात कर रहे हैं हम कि इसमें हमको बच्चों तक अपनी बात को पहुंचाना है। तो इन दोनों काम के लिए मुझे लगता है कि मेरी ये पोजीशन मुझे बहुत फायदा कर रही है कि हम अपने नॉलेज को छात्रों तक ले जाएं और अपने आप को भी अपग्रेड करने के लिए जितना ज़्यादा हो सके हम अपने आप को अपग्रेड करें। Okay sir, being the director of Radharaman Engineering College, what is your philosophy of leadership? How would you describe your leadership style, sir? As a director, my philosophy of leadership is centered around empowerment, collaboration, and continuous growth. I believe in creating a positive and inclusive work environment where everybody feels valued and motivated to their best. Okay sir. Being the director of this college, how do you strategize about the key programs and plans for the marketing and administration of your college? As the director of Radharaman Engineering College, strategy the key programs and plans for marketing and administration involves a strategic approach that takes into accounts of goals, targets, audience, comparative landscapes, and resource available. Basically, as a director, we have a good infrastructure, we have a good faculties, we have a good placement. तो एज अ मार्केटिंग मैं हमेशा छात्रों से कहूँगा कि सबसे पहले आपको अगर कहीं ग्रोथ करनी है तो सबसे पहले आप संस्थान के अंदर पढ़ाने वाली फैकल्टीज को उसको संस्थान में होने वाले प्लेसमेंट्स को इनको ध्यान में रखते हुए आप तो मार्केटिंग टेक्निक्स में भी हम अपने आप को इसलिए इम्प्रूवमेंट दिखा सकते हैं क्योंकि हम इन टर्म्स ऑफ फैकल्टीज हम बेस्ट हैं, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज हम बेस्ट हैं, इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट हम बेस्ट हैं। Okay sir, right. So my next question is, how does the curriculum of your college ensures the best practice of industry? As per curriculum, we have follow RGPB guidelines. Actually, the college is approved by AICP and accredited by RGPB. So we have follow all the curriculum activities from RGPB only. The curriculum, RGPB is designed the curriculum as per industry's expert. He is professionals and advisory boards. So it's upgrade every years. तो हमारा जो संस्थान है वो पूरा का पूरा जो आरजीपी कैरिकुलम पर डिपेंड करने के अलावा we have work with beyond the syllabus. So we have introduced new courses like Python, Java, Zingos. इस कुछ इस टाइप के भी कोर्सेज हैं जो अपने कोर ब्रांचेस में भी आते हैं। उसमें हम लोग कुछ ट्रेनिंग्स, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग्स भी हम ऑर्गेनाइज करते हैं। तो बियॉन्ड द सिलेबस भी हम लोग कैरिकुलम में काम करते हैं और कैरिकुलम जो आरजीपी प्रोवाइड कर रहा है इज अपडेटेड कैरिकुलम, मतलब इसका अपडेशन जो है वो एवरी ईयर अपडेट हो रहा है। तो अपडेटेड कैरिकुलम को हम यूज करते हैं और साथ साथ हम लोग इसमें बियॉन्ड द सिलेबस में बहुत सारी चीजें इंट्रोड्यूस करते हैं। Okay sir, right. So sir,
Any insights into how your college could be more welcoming to students of different races or economic backgrounds? Actually, college have multiple scholarship schemes. हमारे यहाँ संस्थान में ओबीसी के छात्र भी आते हैं, SC ST के छात्र भी आते हैं और कुछ बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स भी आते हैं। इन सब के लिए अलग अलग कैरिकुलम में अलग अलग फीसेस हैं। जैसे मान लीजिए आपका अगर बच्चा बहुत इकोनॉमी बैकग्राउंड से आता है तो हमारे यहाँ ट्यूशन फी वेवर्स की स्कीम्स हैं। ट्यूशन फी वेवर स्कीम के तहत हम बच्चों को एडमिशन देते हैं जिसमें उनको ट्यूशन फीस माफ रहती है, उसमें उनको ट्यूशन फीस नहीं लगती है, मतलब 0 ट्यूशन फीस में उनका एडमिशन कर देते हैं। इसके अलावा फिर गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली ओबीसी और SC ST स्कॉलरशिप्स हैं, इनको भी हम बच्चों को ध्यान रखते हुए इसमें सारी फैसिलिटीज जो है वो कॉलेज ही प्रोवाइड कराता है। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को एंड तक हम उसकी क्या कहते हैं सुविधा देते हैं कि एंड जब तक उसकी काउंसलिंग स्कॉलरशिप नहीं आ जाती है जब तक उसकी मदद करते हैं। गवर्नमेंट की स्कॉलरशिप्स हैं। और दूसरी रहा एडमिशंस में, तो हमारे यहाँ एडमिशन जो होते हैं उसमें SC ST OBC और अदर जो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स होते हैं इनके अलग अलग कोटा भी डिफाइंड है। तो हमको SC ST OBC बच्चों को परफॉर्मेंस मिलती है क्योंकि हमारे यहाँ जो काउंसलिंग होती है वो पूरी की पूरी काउंसलिंग जो है वो DTE ओरिएंटेड होती है, डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन। तो डायरेक्टर टेक्निकल एजुकेशन ने इसके बीच में बाइफरकेट कर रखा हुआ है कि OBC कितनी सीट्स रहेंगी, SC ST की सीट्स कितनी रहेंगी और इकोनॉमिक बैकग्राउंड वाले जो बच्चे रहेंगे TFW बोलते हैं इनको, ट्यूशन फी वेवर, इस स्कीम्स में कितने बच्चे आएंगे, डिफाइंड सीट्स है। तो वो सीट्स में बच्चों को फायदा मिलता है तो वो पूरा हमारे कॉलेज में फायदा उनको दिया जाता है। Okay, sir. Sir, so what do you think your roles and responsibilities to the college and the students are? As a director, whole responsibilities of mine. Some strategic leadership, some plans, some academic calendars. तो जब हम अगर हम बात करते हैं कि एज पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, तो डायरेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर होल द थिंग्स। जितना भी कॉलेज के अंदर होने वाली डेली रूटीन्स का जो वर्क होता है उसको पूरा कॉलेज में डायरेक्टर्स का ही इन्वॉल्वमेंट है। हमको टीचर्स का प्लान से लेकर एकेडमिक में होने वाली एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज एकेडमिक में परफॉर्म हो रही हैं, सारी एक्टिविटीज जो है वो कहीं ना कहीं एक अम्ब्रेला के अंदर आती है, जिस अम्ब्रेला का कहीं ना कहीं की फैक्टर्स डायरेक्टर्स होता है। तो हमारे पास में बहुत सारी प्लानिंग्स होती है। जैसे मान लीजिए हमने अभी कुछ FDPs प्लान किए या कुछ स्टूडेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम्स प्लान किए, तो इन सब प्लानिंग्स को लेके और साथ में बच्चों को बाहर भेजना है या कैंपस प्लेसमेंट बुलाना है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज डायरेक्टर्स की होती है। ओके सर। Sir, what do you see as Radharaman Engineering College greatest strength? First, best placement, good teachers, academic excellence, industries or institution relationship, and student support system, and last one is a good environment for the students. तो ये जब हम ये सब चीज़ों की बात करते हैं तो हमारा संस्थान को हम ये बताना चाहेंगे कि मेरा संस्थान बेस्ट है इन टर्म्स ऑफ प्लेसमेंट। हम पहले प्लेसमेंट में सबसे अच्छे हैं क्योंकि लास्ट 10 ईयर्स का अगर हम प्लेसमेंट देखते हैं तो 10 ईयर्स के प्लेसमेंट में राधावन का प्लेसमेंट बेस्ट प्लेसमेंट है। इसलिए हम अपने आप को प्लेसमेंट के ऊपर अच्छा रखते हैं क्योंकि हमारे यहाँ कोर ब्रांचेस है, मैकेनिकल हुआ, इलेक्ट्रिकल हुआ, सिविल हुआ, इनमें प्लेसमेंट्स का जो रेशो है वो भी 70-80% चला जाता है। उसके बाद सेकंड है एकेडमिक एक्सीलेंस में हम बात करते हैं। तो एकेडमिक एक्सीलेंस में हम एज अ टीचर्स की बात करते हैं तो हमारे यहाँ टीचर्स का जो एक्सपीरियंस है वो मोर देन 10 ईयर्स। 70-80% टीचर्स ऐसे हैं जो आई थिंक जब हमारा कॉलेज स्टार्ट हुआ तब से है, बिगिनिंग ऑफ द इंस्टीट्यूट। एंड थर्ड वन इज क्या, एक एनवायरनमेंट जो होता है स्टूडेंट्स के बीच में, मतलब एक स्टूडेंट और टीचर्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट की जाती है, जिस कारण से बच्चों को एनवायरनमेंट मिलता है, उसको एकदम फैमिली एनवायरनमेंट मतलब होमली एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाता है कॉलेज में, कि बच्चे को ये नहीं लगना चाहिए, स्टूडेंट्स को ये नहीं लगना चाहिए कि हम किसी ऐसे संस्थान में जा रहे हैं जहाँ पर हमारा कोई ध्यान नहीं रखता है। इसलिए हम डे टू डे केयर करने के साथ साथ हमने एक TG सिस्टम बनाया हुआ, मेंटर सिस्टम बनाया हुआ है कि हम स्टूडेंट की वीकनेस को आइडेंटिफाई करके
और फिर उस वीकनेस पे वर्क करते हैं। उससे क्या हो रहा है कि स्टूडेंट के एक एक पर स्टूडेंट्स को हम आइडेंटिफाई करते हैं कि इसकी वीकनेस जहाँ पे, उसको हम स्ट्रेंथ बनाने की कोशिश करते हैं, तो उस वीकनेस और कमजोरी को खत्म करने की कोशिश करने के लिए। तो इस कारण से हम बोल सकते हैं कि हमारा कॉलेज में एक एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया जो थोड़ा सा हेल्दी एनवायरनमेंट है। और आप देखते ही हैं कि हमारे यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो स्टेट ऑफ आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो चारों तरफ से हरियाली, ग्रीनरी है, एक शांत वातावरण है, ट्रैफिक नहीं है, शहर का कोलाहल से दूर एक शांति वातावरण में जो अध्ययन करने की जरूरी है। आपको कोई आवाज, नॉइस नहीं सुनाई दे रही होगी। तो एक प्रकार से हम बोलेंगे कि एक ऐसा एनवायरनमेंट जो दिया जाता है जहाँ से बच्चे को एक शिक्षा ग्रहण करने की हम बात करें तो एक उत्कृष्ट शिक्षा ग्रहण कर सकता है सर। राइट सर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, what do you think should be the college top priority over the next 10 years? Next 10 years, I think हम लोग जो ग्रोथ करना चाह रहे हैं नेक्स्ट ईयर हम एक्रेडिटेशन के लिए भी हम अप्लाई कर रहे हैं, MBA एक्रेडिटेशन के लिए भी प्लानिंग चल रही है। तो नेक्स्ट 10 ईयर्स आई थिंक हम लोग टॉप लेयर्स में होंगे। मध्य प्रदेश के टॉप जो कॉलेजेस हैं उसमें हमारी कहीं ना कहीं गिनती होगी। साथ साथ हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पर जो एकेडमिक एक्सीलेंस है, इसके साथ साथ हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट्स यहाँ से निकल के जाए उनके अंदर एक अच्छा इंसान, मतलब बोलते हैं ना, गुड बिहेवियर को जनरेट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग कुछ ऐसे प्रोग्राम्स भी कर रहे हैं जिसके कारण से एक बच्चे के अंदर एक राष्ट्र के प्रति और अपने संस्थान के प्रति और अपने क्या कहते हैं अपना कार्य क्षेत्र के प्रति एक रुचि जागृत हो। तो हम ये देखते हैं कि 10 ईयर्स बाद इस संस्थान की वैल्यू जो होगी वो टॉप कॉलेजेस में आएगी। हमारे यहाँ के संस्थान के छात्र आपको हर जगह मिल दिखाई देंगे। संस्थान के छात्रों को हम चाहते हैं कि वो इंडिया में रह के या इंडिया के बाहर जाके भी, क्योंकि अभी भी संस्थान के हमारे छात्र इंडिया के बाहर, मैक्सिमम छात्र इंडिया के बाहर काम कर रहे हैं। लेकिन 10 ईयर्स बाद हम देखना चाहते हैं कि हमारे संस्थान का जो छात्र होगा वो एक वेल नॉन संस्थान से पढ़ के एक वेल नॉन फिगर बन के उभर के आएगा। ओके सर। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, any suggestions you would like to give to the current youth and the aspiring students? First, I think छात्रों को पहले तो अपना संस्थान चयन करने के पहले आपको बहुत सारी चीजें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लोग आपको कंफ्यूज करने के लिए बहुत सारे लोग यहाँ पर हैं। तो जब आप जब किसी नए संस्थान में एडमिशन लेने जाते हैं तो आप एक बार संस्थान को देखें, वहाँ विजिट करें, वहाँ की फैकल्टीज से मिलें, वहाँ का एनवायरनमेंट देखें, वहाँ के स्टूडेंट से बात करें। क्योंकि रीजन ये है कि आपको कंफ्यूज करने वाले बहुत सारे लोग होंगे। आपको लोग नेगेटिव बताने वाले भी होंगे, आपको पॉजिटिव बताने वाले भी होंगे। तो कई बार हम नेगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कंपेयर नहीं कर पाते। हम कई बार किसी भी संस्थान को बिना सोचे, बिना उसके धारणा बना लेते हैं। किसी ने हमसे बोल दिया कि राधारमण कॉलेज बहुत अच्छा है तो हमने अच्छा मान लिया, किसी ने बोल दिया बुरा है तो बुरा मान लिया। लेकिन एक बार आप संस्थान में आके देखें, वहाँ की फैकल्टीज से मिले, वहाँ के स्टूडेंट से मिले, उसके एनवायरनमेंट को जांचें। क्योंकि आज फिगर्स में लोग बात करते हैं, लोग फिगर्स देते हैं कि हमारे यहाँ का प्लेसमेंट इतना है, प्लेसमेंट उतना है, लेकिन आप एक बार वहाँ जाके चेक जरूर करें कि उनका प्लेसमेंट कितना है, कितनी कंपनीज विजिट करती हैं। जैसे हम लोग कभी हमारे यहाँ पेपर में आप आएंगे तो आपको कंपनीज का समझ में आ जाएगा कितनी कंपनी विजिट करती हैं। तो आप देखेंगे कि एग्जैक्ट कंपनी उस दिन आपको मिलेगी। हम कोई फिक्स्ड फिगर नहीं देते हैं, और मैं नहीं सोचता कि सब कॉलेज देते होंगे, पर फिर भी मैं कोशिश ये करता हूँ छात्रों के पास में कि छात्र एक तो जब संस्थान में एडमिशन लेने जा रहा है तो सबसे पहले ये देखे कि संस्थान के अंदर फैकल्टीज अवेलेबल है जिस ब्रांच में वो एडमिशन ले रहा है। मान लीजिए मैकेनिकल ब्रांच में एडमिशन ले रहा है तो मैकेनिकल ब्रांच में पढ़ाने वाले कितने प्रोफेसर PhD हैं, CS ब्रांच में पढ़ाने वाले कितने प्रोफेसर PhD हैं, कितने प्रोफेसर ऐसे हैं जो क्योंकि PhD करने से ये मतलब नहीं निकलता कि आप ये बोले कि MTech टीचर्स को एक्सपीरियंस नहीं है, उनको टीचिंग नहीं आती है, पर PhD करने का मतलब है कि उसकी अपनी लर्निंग स्किल अभी बढ़ा रहा है, वो मतलब वो अभी अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। PhD मतलब अपग्रेडेशन, उसने अपने आप को अपग्रेड किया है। तो कितनी फैकल्टीज ऐसी हैं जो अपने आप को अपग्रेड कर रही हैं, जो पढ़ने में आगे अपने आप को रिसर्च में लगी हुई है। क्योंकि मैंने देखा कि मेरे संस्थान में अभी भी सारी मैक्सिमम फैकल्टीज या तो PhD है या PhD परस्यूइंग कर रही है, मतलब अपने आप को अपग्रेड करना चाहती है। तो ये आप संस्थान में देखें कि भाई संस्थान में जो टीचर्स अवेलेबल हैं क्या वो कंटिन्यूस लर्निंग फेज में है कि नहीं है। अगर वो कंटिन्यूस फेज में है लर्निंग में तो हाँ 100% संस्थान के बच्चे भी ग्रोथ करेंगे, क्योंकि जब कोई लर्न करता है तो वो देता भी है। अगर हमको कुछ ज्ञान मिल रहा है तो हम उस ज्ञान को दूसरे को देंगे भी। तो ये भी। और तीसरा आपका है इंफ्रास्ट्रक्चर है। इंफ्रास्ट्रक्चर में आप मैंने देखा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अपन जब देखते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर हम सिर्फ बाहरी वातावरण ना देखें, लैब्स विजिट करें।
क्योंकि मेरा मेजॉरिटी जो होता है वो लेफ्ट्स देखना है भाई। हमको इंफ्रास्ट्रक्चर में आप सिक्योरिटी गार्ड कितने हैं इससे हमारा काम नहीं चलेगा, पर लेफ्ट्स कितनी है वो आपको जरूर देखना है। तो एक बार आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखें कॉलेज आके, फिर आप उसके बाद विजिट करें और फिर आप डिसीजन लें। कंफ्यूज होने के लिए मैं अभी जो यंग यूथ है उस यूथ को मैं यही बताना चाहता हूँ कि आप, क्योंकि ये आपका कैरियर है, यहाँ से आपको कैरियर डिसाइड करना है, और अगर आपने गलत डायरेक्शन में चले गए तो फिर आपका कैरियर में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घात लग जाएगी। तो मेरा कोशिश करना ये है कि आप हमेशा पॉजिटिव रहें और हमेशा पहले आप चीजें देखें, परखें और फिर उसके बाद निर्णय लें। ओके सर। Okay, sir. My last question to you is, how do you tend to establish a healthy relation and environment in your college? In my college, healthy relationship and environment. In terms of healthy relationship and environment, I think we have a clear vision, clear communication, and collaboration with industries, teamwork with faculties and staffs, and leadership. Leadership in terms of as a academic leadership या administrative leadership. तो जब हम बात करते हैं, हम आपकी क्या कहते हैं कोलैबोरेशन की बात करते हैं, जब हम एनवायरनमेंट की बात करते हैं, रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। यहीं पे आपका स्टाफ के बीच में एक रिलेशनशिप क्रिएट होता है। उस रिलेशनशिप को बनाने के लिए उनके बीच में एक टीम वर्क होना चाहिए, आपस में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए और हमेशा एक दूसरे से सीखने की कोशिश करना चाहिए। हम जब भी एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं तो हमें लर्नर होना चाहिए। लर्नर मतलब कि हमें हमेशा हर व्यक्ति से सीखना चाहिए। कई बार मुझे छात्रों से सीखना पड़ जाता है, कई बार टीचर्स को छात्रों से सीखना पड़ता है। एक नई चीज अगर हमको कहीं से मिल रही है तो उसको ग्रास्प करने की और सुनने की क्षमता हमें अंदर होना चाहिए। जब तक सुनने की क्षमता आदमी के अंदर नहीं होगी, जब तक वो व्यक्ति विशेष जो है वो सीख नहीं सकता। तो हमें सबसे पहले सीखने के लिए सुनना और समझना पड़ेगा। तो ये हम ये चाहते हैं जब भी हमारा ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो संस्थान के अंदर कि जिसके अंदर हर व्यक्ति के अंदर सीखने की क्षमता और अपने आप को निखारने के लिए, हम चाहते हैं कि जब हमारा क्या कहते हैं कॉलेज संस्थान के अंदर जो भी टीचर्स हों या फिर स्टूडेंट्स हों या मैं खुद हमेशा अपने अंदर एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट की हमें हमेशा अपने अंदर एक सोच रखनी चाहिए और उसमें हमेशा काम करते रहना चाहिए। जब तक हमारा कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं होगा, जब तक हम अपने टीचर्स का साथ कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते, जब तक टीचर्स अपना कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं करेंगे, जब तक हमारे छात्र का कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट नहीं होगा। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जिसके अंदर सभी लोगों को सीखने की, सभी लोगों को आगे बढ़ने की एक चाह, बस इसी के साथ में अपनी बात करता हूँ। Okay, sir. And I am sure that the thoughts you have shared on our platform will be deeply beneficial and aspiring for all the students too. And thank you so much for giving your valuable time, sir. Thank you.